فیصل آباد ڈی گراؤنڈ میں شیخ افضال کی رہائش گاہ سے شبیہ سلجنا کا جلوس برآمد۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام کی کثیر تعداد شریک۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس چین ون روڈ پر اختتام پذیر۔ سید سرفراز حسین کی رہائش گاہ سے شبیہ علم کا جلوس برآمد۔ شہدائے کربلا کو ماتمداری کا پرسہ جلوس حسینیہ چوک پر اختتام پذیر ہوگا، جبکہ میاں اشتیاق کی رہائش گاہ سے علم کا جلوس برآمد۔ عزاداروں نے مولا امام حسین علیہ السلام کو ماتمداری کا پرسہ پیش کیا۔ جلوس میاں اشتیاق کی رہائش گاہ پر ہی اختتام پذیر ہوگا، جبکہ فیصل آباد نیشنل کالونی میں عمران شاہد کی رہائش گاہ سے شبیہ سلجنا کا جلوس برآمد۔ مومنین کی جانب سے زنجیر زنی اور سینہ کوبی کا ماتم۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جعفر شاہ کے ڈیرے پر اختتام پذیر۔ علی مسجد اور امام بارگاہ فیصل آباد میں 8ویں محرم الحرام کی مناسبت سے مجلس عزا مولانا حسنین عباس نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ سید سرفراز حسین کی رہائش گاہ سے شبیہ علم کا جلوس برآمد۔ عزاداران کی کثیر تعداد میں شرکت، جبکہ حجویری ٹاؤن میں شبیر گگن کے گھر مجلس عزا علی ناصر اور رضوان الحسینی سمیت دیگر ذاکرین نے شہدائے کربلا کے فضائل و مصائب بیان کیے۔ توبہ کی مرکزی امام بارگاہ میں مجلس عزا کا اہتمام۔ مولانا مظہر عباس نقوی نے مصائب بیان کیے۔ محبان اہل بیت اور عزاداروں کی کثیر تعداد میں شرکت، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ 8 محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں۔ فیصل آباد میں 63 جلوس اور 165 مجالس کے لیے 3500 اہلکاروں کی ڈیوٹیاں، 200 سے زائد کیمرے نصب، کنٹرول روم بھی فعال۔ جھنگ میں 229 مجالس اور 63 جلوس برآمد ہوں گے۔ چنیوٹ میں 73 مجالس اور 33 جلوسوں کے لیے 800 سے زائد اہلکار تعینات۔ ٹوبہ میں 48 جلوس اور 50 مجالس کے لیے 1454 اہلکار موجود۔ چنیوٹ جلوس کے راستوں پر سی سی ٹی وی کیمرے اور واک تھرو گیٹ نصب، کنٹرول روم سیکیورٹی کی مانیٹرنگ کرے گا۔ متعلقہ محکموں کے ملازمین ڈیوٹی پر مامور، جبکہ کمشنر فیصل آباد ثاقب منان کا چنیوٹ کا دورہ، ڈی سی آفس میں قائم کنٹرول روم کا وزٹ کیا۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بلال ظفر کے ہمراہ روٹس کا جائزہ لیا۔ میونسپل کمیٹی سمیت تمام اداروں 24 گھنٹے الرٹ رہیں گے۔ صوبہ میں 9 اور 10 محرم الحرام کو عام تعطیل، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری بند، موبائل فون کے سگنل بھی جام رہیں گے۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی میڈیا ٹاک۔ شہر میں دفعہ 144 کا نفاذ، لوگوں کے بلا وجہ جمع ہونے، اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی۔ نو اور 10 محرم کے دن پولیس اہلکاروں اور افسران کو وردی پر آئی ڈی کارڈ آویزاں کرنے کا حکم۔ آئی ڈی کارڈ کے بغیر کوئی اہلکار ڈیوٹی نہیں کرے گا۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کا وائرلیس پیغام صوبہ بھر میں نشر۔ کمالیہ میں شبیہ سلجنا کا مرکزی جلوس محلہ فاضل دیوان سے برآمد۔ عزاداروں کی نوحہ خوانی، گریہ زاری اور سینہ کوبی۔ ڈی سی ٹوبہ عمر جاوید اور ڈی پی او ٹوبہ رانا عمر فاروق کا جلوس کے راستوں کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ٹوبہ میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید اور ڈی پی او رانا عمر فاروق کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس، محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ کمالیہ میں 8 محرم الحرام کا جلوس برآمد۔ راستوں میں دودھ اور پانی کی کثیر تعداد میں سبیلیں۔ اے سی کمالیہ محمد عرفان ہنسرا کا جلوس روٹس کا جائزہ، اے سی کی ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کے ساتھ بھی میٹنگ، سیوریج لائنز کی تبدیلی کے لیے لاہے عمل طے کیا۔ لالیہ میں 8ویں محرم الحرام کا جلوس امام بارگاہ القائم المہدی سے برآمد۔ کمشنر فیصل آباد ثاقب منان نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ مسعود نعمان اور ڈی پی او بلال ظفر کے ہمراہ کنٹرول روم گئے، جبکہ اے سی شورکوٹ اور سی ای او میونسپل کمیٹی کا جلوس روٹس کا دورہ، پرانا لاری اڈا، دربار مائے باپ اور نیاز شہر میں انتظامات کا جائزہ لیا۔
भुआना के चक नंबर 210 तारड़ में सैयद सज्जाद हुसैन शाह और जाबिर हुसैन तारड़ के घर से शबीह जुलजना के जुलूस बरामद। मातमी संगतों और अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसीर तादाद शरीक। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दोनों जुलूस मुकर्रर रास्तों से गुजरकर मरकजी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पसीर होंगे। वहादतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी समेत दीगर उलमा की शिरकत। अमन अव्वलीन तरजीह, दुश्मन अनासर का मिलकर मुकाबला करने का अज़्म। सीईओ फेस्को चौधरी बशीर अहमद का मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। जीएम टेक्निकल चौधरी खादिम हुसैन लाड़ा के हमरा इंतजामात का जायजा लिया। बिजली के बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए स्टाफ को अलर्ट कर दिया। चिनौट के 400 साल कदीम सुन्नी ताजिये का मुनफरिद मकाम। सुन्नी ताजिया लाइसेंस 1860 में अंग्रेज हुकूमत ने जारी किया। मुंतजमीन के मुताबिक ताजिया की ऊंचाई तकरीबन 60 फुट रखी जाती है। सनतों के शहर का 2041 तक का नक्शा कैसा होगा? सनत कहां होगी? पार्क्स और सेहत सहूलियात कहां होंगी? फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का 20 साला मास्टर प्लान का जायजा लेने के लिए सेशन। अवाम और अवामी नुमाइंदगान से मास्टर प्लान पर तजावीज ली गई। एक माह के दौरान एक्सपोर्ट्स में 14.59% कमी रिकॉर्ड। जून में बरामदात 2 अरब 70 करोड़, जुलाई में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रही। तजारती खसारा 3 अरब 10 करोड़ 40 लाख डॉलर तक जा पहुंचा। बरामदात और दरामदात की जुलाई की तफसीली रिपोर्ट जारी। ईसीसी का एक्सपोर्ट सपोर्ट में मजीद इजाफे के लिए अहम इजलास। कास्ट ऑफ डूइंग कम रखने के लिए सस्ती बिजली और गैस की फराहमी में तोसी कर दी। गैस $6.5 MMBTU, बिजली 9 सेंट पर दस्तयाब होगी। गैस पर 29, बिजली पर 35 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन के दावे फकत दावे ही रहे। प्रॉपर्टी टैक्सेस के निज़ाम में शफाफियत के लिए हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट सर्वे न हो सका। 2021-22 के प्रॉपर्टी टैक्स के लिए सर्वे रिपोर्ट इस्तेमाल होगी। महंगाई के तूफान में मजीद इजाफा। महकमा एक्साइज ने व्हीकल्स नंबर प्लेट की कीमतें बढ़ा दी। मोटरसाइकिल 1000, गाड़ी 1500, जबकि सरकारी गाड़ी की 1600 रुपये कीमत मुकर्रर। टमाटर फिर महंगे। लाल टमाटरों के लिए लाल नोट दरकार। जंग में 20 रुपये का इजाफा। फी किलो टमाटर 120 रुपये हो गए। फैसलाबाद में टमाटर 94 रुपये किलो में बेचे जाने लगे। फल को भी हाथ लगाना मुश्किल। अंगूर 320, आटा 64, आम 64 240, सेब 150 रुपये किलो में फरोख्त। महंगाई रे महंगाई अवाम की जान पे बनाई। चीनी महंगी, घी महंगा, 2 वक्त की रोटी भी महंगी हो गई। चिनौट में 20 किलो का थैला 1110 रुपए तक जा पहुंचा। मजदूरी से कुछ नहीं बनता, घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। मजदूर की दुहाई। महंगाई के हाथों परेशान अवाम की मुश्किल कम न हुई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चाय, ऑयल, बाथ सोप और माचिस की कीमतों में इजाफा। चाय की पत्ती 40 रुपये महंगी। कुकिंग ऑयल की कीमत में 34 रुपये फी किलो का इजाफा। शहरी परेशान, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। चीनी की एक्समिल कीमत 60 से 72 रुपये 22 पैसे फी किलो मुकर्रर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 17% सेल्स टैक्स लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का शुगर मिल्स अबूरी रिलीफ का फैसला लाहौर हाई कोर्ट को मौसूल। चीनी केस का 15 रोज में फैसला करने का हुक्म दे दिया। कॉपी सिटी 41 को मौसूल। कोरोना केसेस में एक बार फिर तेजी। टोबा में मजीद 6 अफराद का टेस्ट मुस्बत। मरीजों की तादाद 133 हो गई। जंग में 6 मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस 121 हो गए। फेस्को जंग सर्कल में मुलाजिमीन की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल टीम तश्कील।
डोबा में सरकारी स्कूल ने तलबा को सफाई सुथराई पर लगा दिया। स्कूल इंतजामिया ने कलम किताब की बजाय बच्चों के हाथों में झाड़ू थमा दिए। यूनिफॉर्म पहने स्कूल की सफाई करते बच्चों की फुटेज मंजर-ए-आम पर। फैसलाबाद में एजुकेशन अफसरान और मुलाजमीन का डेटा 6 माह में ऑनलाइन न हो सका। महकमा तालीम पंजाब का इजहार बरहमी। सीईओज एजुकेशन को 31 अगस्त तक की डेडलाइन दे दी। डाइंग कैडर के हवाले से अहम पेशरफ्त। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मकामी हुकूमतों से डेटा मांग लिया। कितने मुलाजमीन भर्ती से महरूम रहे, आगाह किया जाए। 17A के तहत भर्तियों को यकीनी बनाने की हिदायत। फैसकों में खुद एहतसाबी का अमल जारी। महकमाना गफलत पर एसडीओ रहमत टाउन और एसडीओ अल्लामा इकबाल सब डिवीजन मुअत्तल। इमरान अली और सईदुर रहमान को महकमाना गफलत पर मुअत्तल किया गया। जीएम टेक्निकल फैसको चौधरी खादिम हुसैन लाड़ा ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सिस्टम में मजीद जिद्दत लाएंगे। चेक बाउंस और मुआहदों की खिलाफ वर्जी करने के मुकदमात में इजाफा। जंग की सिविल अदालतों में केसेस की तादाद 250 से तजावुज कर गई। वकला और फरीकैन की अदम पेशी के बायस केसेस सुस्त रवि का शिकार। चिनोट बस स्टैंड में गैस सिलेंडर वाली गाड़ियों का दाखिला बंद। सिलेंडर फटने से माली और जानी नुकसान का अंदेशा था, जबकि 2 साल कबल भी दर्जनों कीमती जानों का ज़िया हुआ। एनएफसी फैसलाबाद के 11 शोबों के हेड्स का इंचार्ज डायरेक्टर अदम एतमाद अशरफ डोगर की परफॉर्मेंस पर एतराज़ात उठा दिए। इदारे को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। अशरफ डोगर कहते हैं मातहत अफसरान को काम को कहा जाए तो ऐसी दरख्वास्तों का सामना करना पड़ता है। अंजुमन ताजरान रेक्स सिटी फैसलाबाद की जानिब से लंगर तकसीम किया गया, जबकि रेक्स सिटी के ताजरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हलीम, नान और हलवे के साथ लोगों की तवाज़ो की गई। पुलिस एहलकारों के लिए प्रमोशन कोर्सेज सितंबर के पहले हफ्ते में लोअर क्लास कोर्स कराया जाएगा। प्री लिस्ट एहलकारों की तफसीलात तलब 23 अगस्त तक इरसाल करना होगी। लोअर क्लास कोर्स पास हवलदार ओहदे पर तरक्की के अहल होंगे। एमपीए मियां वारिस अजीज का कायद आजम अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट फैसलाबाद का दौरा। लेबॉर्ट्री स्कूल समनाबाद और कायद अकेडमी की सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब। सीईओ एजुकेशन अली अहमद के हमरा पौधा लगाया। एकेडमिक और चैम्बर मसाइल अब बराह रास्त हल होंगे। सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बेटे एहसन सलीम बरियार मुआवने खुसूसी पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तैनात। एफसीसीआई के सदर एहतशाम जावेद ने मुबारकबाद पेश की। फैसलाबाद आने की दावत दी। महकमा तालीम फैसलाबाद की दरख्त लगाओ दरख्त बचाओ मुहिम शुरू। स्कूलों में पौधों की हिफाजत के लिए आगाही सेमिनार्स का इनेकाद होगा। सीईओ एजुकेशन ने लगाए गए पौधों की देखभाल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ यूथ विंग फैसलाबाद की तंजीम साजी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए अब्दुल्ला मलिक सदर और अली असर जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। मोहम्मद कासिम और गुलरेज नायब सदर। फहद जट एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और उमैर रंधावा को सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा मिल गया। महकमे सकाफत का पंजाब इवेंट कैलेंडर तैयार। वफाकी और सूबाई सतह पर मंजूरी ली जाएगी। फैसलाबाद समेत हर जिला और तहसील में सकाफती प्रोग्राम्स होंगे। 2 हफ्तों की तकरीबात को डिवीजन्स के हिसाब से तरतीब दिया गया। फैसलाबाद सुप्रीम अंजुमन ताजरान की जानिब से नड़वाला चौक में सबील और लंगर का एहतमाम। चेयरमैन अमीन भट्ट की शिरकत। कहा कि 9 और 10 मुहर्रम को भी आज़ादार भाइयों के लिए खुसूसी स्टॉल्स का एहतमाम होगा। मुहर्रमुल हराम में शोहदाए करबला की याद ताज़ा। प्यारों की कब्रों पर भी हाजिरी। डिवीजन भर में भी बिछड़े प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देने पहुंच गए। फूल निछावर किए जाने लगे। जंग में मुनाफिक और बास न आए। फूलों के रेट्स 2.5 गुना बढ़ा दिए। और
दरबार हजरत सुल्तान बाहू पर मुहर्रम उल हराम की 10 रोज़ा तकरीबात। अहमदपुर सयाल में दरबार 3 दिन 24 घंटे खुला रहेगा। मुल्क भर से ज़ायरीन की हाजिरी, फूल प्रूफ सिक्योरिटी, लंगर का भी वसी एहतमाम। शोरकोट में दरबार माए बाप पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।